આજરોજ તારીખ 29 નવેમ્બર 2024 જૂનાગઢ કલેક્ટર શ્રી અનિલકુમાર રાણા વશિયાની અધ્યક્ષતામાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરેલ, જેમાં તનસુખગીરી ડેવલોપ પામ્યા છે ત્યારે અંબાજી મંદિર, ગુરુદત્તાત્રેય મંદિર અને ભીંડ ભજન મંદિર આ ત્રણેય મંદિરના મહંતની નિમણૂકની ચર્ચા થઈ અને ભવનાથ મંદિરના મહંત શ્રી હરિગીરી બાપુની મુદત પૂરી થાય એ ચર્ચા થઈ અને ત્રીજી લેટર વાયરલ થયો છે. લેટર વિશે તપાસ ચાલુ છે અને અંબાજી મંદિર, દત્તાત્રેય મંદિર અને ભીડ ભંજન મંદિરના હાલ તેની કામગીરી મામલતદાર શ્રીને સોંપવામાં આવી છે. અત્યારે મામલતદાર શ્રી વહીવટદાર છે. અહેવાલ વલ્લભભાઈ પરમાર, સનાતન ન્યૂઝ નેટવર્ક. જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવેલા ગિરનાર પરના શ્રી અંબાજી મંદિર, ગુરુ દત્તાત્રેય શિખર ગિરનાર મંદિર અને ભીડભંજન મંદિર, આ ત્રણેય મંદિરના મહંત શ્રી તનસુખગીરીજીનું અવસાન થતાં આ ત્રણેય મંદિરના મહંતશ્રીની નિમણૂક કરવાની થાય છે. શ્રી તનસુખગીરીજીની આ ત્રણેય મંદિરના મહંત તરીકેની નિમણૂક વર્ષ 1983માં થઈ હતી અને જે તે સમયે એમના ગુરુજીએ એક વિલ કરીને આપ્યું હતું અને એના આધારે તત્કાલીન કલેક્ટરશ્રી એમની નિમણૂક કરી હતી. હવે તનસુખગીરીજીનું અવસાન થતાં ત્રણેય મંદિરોના જ્યારે મહંતની નિમણૂક કરવાની થાય છે ત્યારે એમાં એક નિશ્ચિત પ્રક્રિયા છે. આ મહંત શ્રીના નિમણૂક બાબતે જરૂરી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે, એનું વેરિફિકેશન કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ નિમણૂક થતી હોય છે. એટલે આ પ્રક્રિયામાં હજુ સમય લાગી શકે એમ તેમ છે અને સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા યોગ્ય રીતે થાય ત્યાં સુધીના આ સમય દરમિયાન હાલની સ્થિતિએ આ ત્રણેય મંદિરના વહીવટકર્તા તરીકે અમે જૂનાગઢ શહેરના મામલતદારશ્રીની વહીવટીકર્તા તરીકેની નિમણૂક તાત્કાલિક ધોરણથી અસર આવે એ રીતે કરવામાં આવે છે. મામલતદારશ્રીને પણ અત્રેથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે તાત્કાલિક આ બાબતની જે કાર્યવાહી છે એ હાથ ધરી લે. બીજો વિષય જે ભવનાથ મંદિરના મહંત બાબતે છે તો એ બાબતે આપને જણાવી દઈએ કે 2025ના જુલાઈ સુધી હાલના જે મહંત છે હરિગીરીજી એમની નિમણૂક થયેલી છે 31/7/2025 સુધી. જે પણ ગ્રીવાંશ અમને મળ્યા છે વિવિધ સંતો તરફથી એના બાબતે તપાસ સોંપવામાં આવેલી છે. ખાસ જે ગ્રીવાંશ મળ્યા છે એમાં એ છે કે જે શરતોએ એમની નિમણૂક છે એ શરતોનું પાલન થાય છે કે નથી થતું, તો એના માટે અમારા તાબાના અધિકારીઓ છે એ અત્યારે તપાસ કરી રહ્યા છે અને તપાસના અંતે અમારી પાસે જે પણ રિપોર્ટ આવશે એના અકોર્ડિંગલી આ બાબતે જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ત્રીજો મુદ્દો જે એક પત્ર વાયરલ થયો છે એમાં સ્પષ્ટતા ખાસ કરવાની કે આ પત્ર જે છે એ વર્ષ 2021નો હોય એવી જાણકારી મળી છે અને આ બાબતે પણ ખૂબ ડિટેલમાં નિષ્પક્ષ રીતે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. એમાં જિલ્લા પોલીસ તરફથી પણ તપાસ થઈ રહી છે અને જરૂરી માહિતી ભેગી કરી અને પત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન શું છે, એનું કન્ટેન્ટ છે, એની સત્યતા વગેરે માટે અત્યારે તપાસ ચાલી રહી છે. એમાં જરૂર જણાય તો FSL વગેરે છે એની પણ એમાં મદદ લેવામાં આવશે. એટલે સંપૂર્ણ ખરાઈ થયા બાદ એમાં પણ જે કાર્યવાહી છે એ હાથ ધરવાની થાય છે. આપના માધ્યમથી તમામને ખાસ જણાવી દઉં કે જે પણ અત્યારે વિવાદ આ બાબતે અત્યારે ચાલી રહે છે જૂનાગઢમાં, એમાં સરકારશ્રી તરફથી પણ આમાં ખૂબ ગંભીરતા દાખવવામાં આવી છે અને સંપૂર્ણ તપાસ નિષ્પક્ષ રીતે થાય અને એના માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવે એવી ઉચ્ચ સ્તરીયથી સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે અને સૂચનાઓના અનુસંધાને અત્યારે જરૂરી કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. જૂનાગઢ ભૂતનાથ મંદિરના મહંત મહેશગીરી બાપુ દ્વારા ફરી અપાઈ પ્રતિક્રિયા. મહેશગીરી બાપુની પ્રતિક્રિયા દરમિયાન રાજુગીરી બાપુ, કૌશિકગીરી બાપુ રહ્યા હાજર. દેશભરના અનેક સાધુ સંતોના સમર્થન માટે ફોન આવી રહેલ છે. હાલ સુધીમાં હરિગીરી બાપુ વિરુદ્ધ 2 પોલીસમાં અરજી દાખલ કરાઈ. અખાડો અમારા માટે ભગવાન છે. ઓડિટમાં કોઈ ગડબડીના કામ બહાર ન આવે. કાલી કરતૂત ઓડિટમાં ક્યારેય બહાર ન આવે.
હું ખોટો સાબિત અથવા હરિગીરી બાપુ બેમાંથી કોઈ એક ખોટા સાબિત આગામી સમયમાં થશે. કોઈ એક વાત પર બની રહો હરિગીરી બાપુ. અમિત શાહના નામનું લઈ ખોટો પ્રચાર હરિગીરી બાપુ કરે છે. યોગ્ય તપાસ થાય તો મોટું કાંડ બહાર આવી શકે હરિગીરી બાપુનું. પૈસાની લેતી દેતીનો પત્ર સરકારી દસ્તાવેજમાંનો એક છે. મેન પત્ર વાયરલ કરેલ જેની તારીખ 4 ઓક્ટોબર 2021 છે. હરિગીરી બાપુ જેલની તૈયારી કરો. હરિગીરી બાપુ તમે મોટો ગુનો કરેલ છે. રાજુગીરી બાપુ, કૌશિકગીરી બાપુએ આ પૂર્વે ભવનાથ મંદિર માટે લડાઈ લડેલ. પીએમ મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહને વિનંતી સત્ય બહાર આવવું જોઈએ. મહેન્દ્રાનંદજી મહારાજને મારે કહેવું છે આ લડાઈ મારી હરિગીરી બાપુ હારે. મહેન્દ્રાનંદજી મહારાજ હું ભવનાથ જઈશ તો ત્યાં ચા પીને જઈશ. મહેન્દ્રાનંદજી મહારાજે હાલમાં થોડા દિવસ પહેલા કહેલ કે ભવનાથ જાવું હોય તો પહેલા મુચકુંદ આવે એટલું યાદ રાખજો. એમએલએ કોરડિયા અને શહેર ભાજપ પ્રમુખ પુનિત શર્મા મને સરકાર વતી મળ્યા. સરકાર દ્વારા મને યોગ્ય તપાસની ખાતરી અપાઈ છે. કલેક્ટર માટે જે કહેલ કે અનિલ રાણાવસિયા પર વિશ્વાસ નથી તે નિવેદન બદલી હવે હું તેના પર વિશ્વાસ રાખું છું. हाल 1 तारीखे जे भवनाथ जवानु अल्टीमेटम आपेल ते मौकूफ राखूं छूं. क्योंकि अगर कागज झूठ होता तो एफएसएल में जाता, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, पर आपने ही जमा किया हुआ कागज है तो इसको तो अब तो एफएसएल में भेजने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में यह कागज है. आपको तो तुरंत ही हिरासत में ले लेना चाहिए, तुरंत ही हिरासत में लेना चाहिए, क्योंकि आपने सरकार को झूठ बताया. आपने सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच के ये कागज में जो एल फेल लिखा हुआ है, या ये सच है झूठ है अब आपको ही पता, पर सरकार के भीतर ये कागज आपने दिया, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों के भीतर का ये कागज है. अब इसकी बात मैं बताऊं आपको, मैं मीडिया को इसकी कॉपी भी भेज दूंगा. ये वो कागज है. इसके नीचे आप देख सकते हैं कचेरी का सिक्का, कौन सी तारीख को लिया गया वो तारीख भी इसमें लिखी गई है, वो मैं आपको दे दूंगा. आप समझ रहे हैं? तो ये सरकारी दस्तावेजों में से कागज है और इसके पेज नंबर होते हैं. जब सरकार कागज दस्तावेज बनाती पेज नंबर होते हैं, उस पर पेज नंबर भी आपके पास पहले की कॉपी उसमें लिखा हुआ है, आप देखना. तो ये तारीख जो है, अब देखो 4/2/2021 है शायद ये तारीख. 4/10/2021, 4/10/2021. तब तो आपका मेरा कोई विवाद ही नहीं था, तब तो कोई विवाद ही नहीं था. तो ये कागज मैंने तो नहीं रखा, सरकार खुद तो रखेगी नहीं. भवनाथ के लिए आप उसको हड़पना चाहते थे और भवनाथ के लिए कागजात तो आपने जमा कराए थे, तो ये कागजात तो आपके द्वारा जमा किया हुआ कागजात है महाराज. अब आप बचोगे कैसे महाराज? जेल जाने की तैयारी कर लो, जेल जाने की तैयारी, क्योंकि इसको तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होता तो लेबोरेटरी में भेजा जाता. ये तो आपके द्वारा जमा किया हुआ कागज है. और ये इस पे देखो, हर कागज पे देख लीजिए आप, सिक्का लगा हुआ है. बहुत सारी बातें हैं इसमें, पर अभी पत्र की बातें हम करेंगे. तो ये बात अब तय है कि महाराज आपको तैयारी कर लेनी चाहिए. अच्छा होगा, शायद भगवान गिरनार माफ कर देगा कि आप स्वयं कबूल कर ले कि हाँ यह गुनाह आपसे हुआ है, तो थोड़ी सजा शायद कम हो सकती है. पर मुझे नहीं लगता कि अब गिरनारी आपको छोड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है महाराज. और मुझे तो लगता है जिन गरीब साधुओं को पीड़ा पहुंचाई है, ये सब हाय लग रही है, ये सब बार बार आके बोल रहे हैं. और अब तो धीरे धीरे बहुत सारे साधु महात्मा जो कांड आपने किए हैं ना, बाहर आके अब स्वयं बोलेंगे, क्योंकि ये अब रुकने वाला नहीं, अब सफाई अभियान शुरू हो चुका है. तो इतना याद रखिएगा महाराज. मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगा कि राजूगिरी जी महाराज, इन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में गए, हताश हो गए, अधिकारियों को कितनी बार मिले. इस कागजात में सब कुछ है, आप लोग वहां से जमा करवा लेना कागजात, तो आपको 500 पन्ने की फाइल आपको भी मिल जाए. इतने वो लड़े हैं, पर हताश होकर के बैठ गए. कौशिक गिरी जी महाराज
अपने गुरु का स्थान होते हुए भी एक गांव में बैठे हुए हैं, हताश होकर के। कितने लड़े, उनकी ये फाइल है, ये देख लो, ये कौशिक गिरी महाराज की फाइल, ये राजू गिरी जी महाराज की फाइल। एक और अमर गिरी जी महाराज, वो भी लड़ रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोर्ट में केस भी चल रहा है इसके खिलाफ। अब 3 साधु, मैं, राजू गिरी, कौशिक गिरी, ये सीधा सीधा लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के जो यहां पर कचहरी है उसमें कई बार आवेदन किया, फिर एमएलए साहब ने भी आवेदन किया, अमर गिरी जी ने भी आवेदन किया। तो 5-5 व्यक्तित्व बार बार ये सब कर रहे। तो ये हरिगिरी जी महाराज के षड्यंत्र कितने बड़े होंगे, इसका आप सभी को अंदाजा आना चाहिए कि किसी को कोई जवाब ही नहीं दिया गया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया गया। बहुत गंभीर बात है। आगे જૂનાગઢના નાગરિકો, ગુજરાતના અને દેશના નાગરિકોએ સાથ આપ્યો, તેમજ બધાએ સાથ સહકાર ધમકી મળ્યા છતાં પણ સાથે રહ્યા, પત્રકાર ખાસ કરીને સત્યના સાથે રહ્યા। એના માટે હું સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું, હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। જય ગિરનારી, નમો નારાયણ। અને હું આપને કહીશ કે રાજુ ગિરીજી અને કૌશિક ગિરીજી આમનું વર્જન પણ તમે થોડુંક લેજો। જય ગિરનારી। આમ એવું છે કે આખા આંબામાં જઈએ ને સાહેબ, તો આંબામાં જઈએ તો અંબાજી, ભવનાથ અને બધું એક પેલામાં હતું, પછી 2 ફાટા પડ્યા અને આવું ઘણી બધી જગ્યાએ આવું થયું છે। અને એવું થાય કેમ કે એક બાપના 2 દીકરા હોય, એક બાપના 4 દીકરા હોય તો ફાટા પડે, પણ પરંપરા મુજબ શું છે એ બહુ જોવાનું મહત્વ હોય। તો અત્યારે બહુ લાંબુ ન જાઉં, સરકાર એની તપાસ કરશે, પણ રઘુનાથ ગિરીજી પછી એમના ચેલા રમેશ ગિરીજી હતા, એમના ગુરુભાઈ અમર ગિરીજી હતા। રમેશ ગિરીજીના ચેલા તમે અહીંયા બેઠા છે, જોઈ શકો છો। પણ એ બધું નેવે મૂકીને શૈલેજા દેવીજી, જેને કઈ લેવા દેવા જ નથી, પહેલા શરૂઆતની વાત કરું, એમને કઈ લેવા દેવાનું કારણ વગરના આટલું સરસ એમનો આશ્રમ, તોય આમાં ઘૂસ્યા। એક મિનિટ આમાં ઘૂસ્યા, અને એમાં ઘૂસ્યા પછી પેલા હરિગીરીજીને આપવામાં આવ્યું, પછી આ બધું ચાલતું રહ્યું। મને લાગે કે આ તપાસ થવી જોઈએ। અને જયશ્રીકાનંદ ગિરીજી તો ગિરનારના પીઠાધીશ બન્યા છે, કરોડો રૂપિયા અખાડાને આપ્યા, મંદિરોને આપ્યા, સાધુઓને આપ્યા, એનું નામ લખ્યું, તમે એને 25 લાખ આપ્યા। હવે આ જયશ્રીકાનંદજી આમ ખાલી પલ્લું ઝાડે તો 10 હરિગીરી એમાંથી પડી જાય યાર। હું બોલો, બીજું કોઈ प्रश्न हो आपने? ऑडिट का था और दूसरा पत्र सफाई का था कि हरिगिरी ने कुछ नहीं किया हुआ। तो ऑडिट की जब बात आती है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोई भी काला काम, काली करतूत करता है तो ऑडिट में कभी नहीं आता। जमीन में 2 तरह के रेट चलते हैं, सभी को पता है। एक होता है जो सरकारी कागज पे लिखा जाता है, जंत्री जिसको गुजरात में कहते हैं, उसका रेट, और एक होता है मार्केट का रेट। तो ऑडिट में वो लिखा जाता है जो सब कुछ 1 नंबर में हुआ होता है। 2 नंबर में जो हुआ होता है काली करतूत वाला, वो ऑडिट में कभी नहीं रहता। तो ये एक सोचने वाली बात है। मैं ये कभी नहीं कहा हूं कि अखाड़े ने गलत किया है, मैं ये कह रहा हूं कि हरिगिरी ने गलत किया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हरिगिरी ने कुछ किया नहीं किया, सफाई की बात हम प्रतीक्षा करेंगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व थोड़े दिनों में बाहर आ ही जाएगा। या तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा या वो झूठे साबित हो जाएंगे, तब सत्य पता ही चलेगा। और जब व्यक्ति ही झूठा निकल जाए तो फिर उसकी सफाई जब हमने दी है तो वो तो डरा धमका के और कितनों के पास क्या क्या बुलवाता है। तो ये बात, दोनों का खंडन यहीं पर हो जाता है जो मैंने अभी आपके सामने बात रखी। अब आगे की बात जब मैं करता हूं कि हरिगिरी महाराज जी का एक पत्र मैंने जारी किया था मीडिया के समक्ष। अब वो पत्र जब उन्होंने कहा कि इसको झूठी तरह के फ्रॉड कर दिया है महेश गिरी ने, उस पत्र के ऊपर दूसरा कागज रख करके कुछ लिख करके दिया है।
पहले कहा कि ये मेरा है ही नहीं, फिर कहा कि दूसरा कागज रख दिया। अरे तुम एक बात पे तो टिको हरिगिरी महाराज, एक बात पर तो टिको। अब बताओ मानसिक सारावार की जरूरत है मुझे या आपको? और यदि आपके पास कोई अच्छा डॉक्टर है भारत भर में तो बताइए, हम दोनों मिलकर के सारावार ले लेंगे। पर एक बात पे टिकिए, एक कागज पे दूसरा कागज रख के सिग्नेचर करवाया, क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ आपने जो बातें बताई, मैं आज उसकी भी सच्चाई पेश करूंगा। सब आपने कहा कि लेटर फ्रॉड है। महाराज मुझे तो पता है कि सब झूठ है। अमित भाई जैसा व्यक्तित्व आप जानते कितना हो उनको, संतों का आशीर्वाद लेने की भावना रख करके आपको मिले थे, अखाड़े में लेकर के मैं आया था क्योंकि आशीर्वाद की भावना लेकर के वो आए थे। उनका नाम लेकर के झूठा प्रचार करते हो। जो सरकार इस देश और धर्म के लिए, सनातन के लिए तटस्थ होकर के आगे चलती है, श्री राम मंदिर का निर्माण जिस सरकार ने किया, उनके साथ आप जो फ्रॉड और षड्यंत्र कर रहे हो, मुझे उसको सामने लाना था कि आप क्या क्या कांड करते हो। यह बात बताने के लिए वो पत्र जारी किया था और सत्य बाहर आना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे पता है कि सत्य क्या है, पर यह व्यक्ति आपके नाम से कैसे फ्रॉड करता है, यह बताने के लिए पत्र जारी करना बहुत जरूरी था, ताकि पता चले कि यह कितना खतरनाक गुनाह है और इसकी सजा उसको मिलनी ही चाहिए। अब पत्र की बात जब मैं कहता हूं कि पत्र सच है या नहीं, हमारे यहां पर जो राजूगिरी जी महाराज है, ये महाराज जी ने लड़ाई लड़ी भवनाथ को लेकर के। कौशिक गिरी जी महाराज है, इन्होंने लड़ाई लड़ी भवनाथ मंदिर को लेकर के, क्योंकि उनके गुरु की समाधि वहां पर है, परंपरा वहां पर है। और लड़ाई लड़ने के बाद उनको प्रताड़ित किया गया, उनको कोई जवाब नहीं दिया गया, ऊपर ऊपर से गोल गोल जवाब करके घुमाया गया। प्रताड़ित करने के बाद हताश होकर के बैठ गए वो। आप सोचिए कितना बड़ा अत्याचार है ये। वो सच है या नहीं ये तो सरकार तय करेगी, प्रशासन तय करेगा, पर प्रताड़ित करके, हताश करके उनको इस तरह से पागल करने का कार्य कर रहे हैं आप, कि कितना योग्य है। ऐसे कई आश्रमों के साथ आपने किया है महाराज। अभी तो आपकी जांच जब शुरू हो जाएगी ना, यदि सच में केंद्र सरकार जांच शुरू कर देगी, तो मैं आपको कहता हूं देश का सबसे बड़ा कांड आपके नाम से निकल सकता है, क्योंकि इतने सारे कांड आपके हैं, इतने सारे कांड आपके हैं कि कुंभ मेला आ रहा है। कुंभ मेले में सब स्नान करने जाते हैं। मैं तो सभी साधु संतों, सभी आचार्यों से प्रार्थना करूंगा, महाराज हम गरीब साधुओं की प्रार्थना सुन ले आप सभी बड़े बड़े संत महात्मा, सभी अखाड़े, कि यह कुंभ मेला धर्म व्यवस्था के परिवर्तन का, यह कुंभ मेला धर्म व्यवस्था के शुद्धिकरण का मेला बन जाए। सनातन में ऐसे लोग जो इसको दूषित कर रहे हैं, इनको बाहर निकालिए और हमारी व्यवस्था, धर्म व्यवस्था का शुद्धिकरण कीजिए प्रभु। हम सभी आचार्यों को, सभी साधु संतों को दो हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को विनती करते हैं कि सनातन के हम सच्चे सिपाही हैं, पर गरीब साधुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, भस्म रगड़ के भगवान के सिवा जिसको किसी की पड़ी नहीं है, उसकी वजह उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे साधु संतों के लिए मैं तो केवल उनके लिए एक दीवार बन के खड़ा हूं, उनको तकलीफ ना हो इसलिए। बाकी मेरा कोई आशय नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गादी पे हावी हो जाऊंगा और ये करूंगा। सत्य बाहर आना बहुत जरूरी है।
सत्य बाहर आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आगे की बात के लिए बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि तनसुख गिरी महाराज के समाधि को मैं तभी श्रद्धांजलि दूंगा जब भवनाथ मंदिर से हरिगिरी महाराज को बाहर किया जाएगा या वो त्याग पत्र दे देंगे, तब तक श्रद्धांजलि नहीं दूंगा। और उसी तरह से एक संकल्प और भी लिया था कि जब तक हरिगिरी महाराज को मैं भवनाथ मंदिर से बाहर नहीं निकालूंगा या वो त्याग पत्र नहीं देंगे, भवनाथ मंदिर के अंदर बाहर से दर्शन करूंगा। तो ये संकल्प लेकर के आगे चल रहा हूं। तो मैं इसी संकल्प को दोहराते हुए ये कहना चाहूंगा कि कई तरह के लोग आगे आए और कई तरह के लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले महेंद्रानंद गिरी जी, उन्होंने अभी कुछ बोला और ये बोला कि गोडाउन भरे हुए हैं, फिर ये भी बोला कि भवनाथ आएंगे तो बीच में मुचकुंद गुफा आती है, ये याद रखना। महाराज, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं क्योंकि आप इस लड़ाई में है ही नहीं। हरिगिरी महाराज को मैं 30 वर्षों से 35 वर्षों से जानता हूं। तब आप ना तो चेला बने थे, जन्म हुआ होगा नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी उम्र का मुझे अंदाजा नहीं है। आपसे अनन्य प्रेम करता हूं, इसीलिए परिक्रमा मेले के वक्त मैं स्वयं आपके वहां आया था, आपके मुचकुंद गुफा आया था, आपको मिला था। आपको मैंने यह भी बताया था कि यह लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है, यह लड़ाई मेरी हरिगिरी जी के साथ है, आपके गुरुजी है। मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, पर आपके और मेरे बीच में यह लड़ाई नहीं है। आप इससे दूर रहिएगा क्योंकि ये तो हमारी वर्षों के पहचान है और जो गलत हुआ है उसके साथ की लड़ाई है। पर उसके बावजूद मैंने आज तक आपका नाम कभी नहीं लिया महाराज, क्योंकि मैं मर्यादा जानता हूं। और जब इतने प्रेम से भेंट हुई हमारी तो मैंने नाम तक नहीं लिया था और आपने इस तरह की बात कह दी और धमकी की बात कर दी। महाराज, मैं तो क्या कहूंगा, मैं आपकी धमकी स्वीकार करता हूं, आपसे प्रेम करता हूं, आपकी धमकी स्वीकार करता हूं और आपको यह भी कहता हूं कि भवनाथ जब जाऊंगा तो मुचकुंद गुफा दर्शन करके ही जाऊंगा। चाय अगर आप पिलाएंगे तो वो भी पी के जाऊंगा, पर अब तो मुचकुंद गुफा से ही जाऊंगा क्योंकि महाराज थोड़ा सा ऐसा ही साधु हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या करे, अब प्रेम करना मेरा स्वभाव है, तो चाय पी के ही जाऊंगा महाराज जी, इतना आपसे कहूंगा। तो आगे मैं आपसे केवल प्रार्थना करूंगा कि इससे दूर रहिएगा क्योंकि ये आपके साथ लड़ाई नहीं है, आपके साथ लड़ाई नहीं है। दूसरा, एक और वक्तव्य आया किन्नर अखाड़े से, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का। हे शिव शक्ति माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे मां जगत जननी, आप तो आशीर्वाद दीजिए क्योंकि आपके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है मां। यदि आप आशीर्वाद देगी तो ये सत्य की विजयी, मैं इस लड़ाई को मैं जीत जाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। अधूरी जानकारी के साथ आपने जो भी मेरे लिए बोला मैं उसको भूलने के लिए तैयार हूं, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के लिए आपने समर्थन व्यक्त किया है, हो सकता है कोई संबंध आपका उनका हो, क्योंकि मेरा आपका सीधा परिचय कभी नहीं हुआ, तो आपको व्यक्तित्व मेरा पता नहीं है। और एक बात कि आपने आपका मेरा कोई संबंध ना होते हुए भी आपने वीडियो जाहिर कर दिया, यह कितना योग्य है। ना तो मैं आपके अखाड़े से हूं, ना आप मेरे अखाड़े से हैं। सन्यास और गुरु के बारे में आप बातें कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद जो अंग्रेजों को पाठ जब सिखाने गए थे तो वो भी सूट बूट में गए थे, क्योंकि जो जैसा व्यक्ति और देश होता है वैसा भेष पहनना पड़ता है माता। पर सन्यास इधर होता है, केवल इसके साथ ही नहीं जुड़ा होता, ये उसका अंग है। तो माता, मैं फिर से प्रार्थना करता हूं कि प्रतीक्षा कीजिए,
प्रतीक्षा कीजिए, सत्य बाहर आएगा। और मैं दो हाथ जोड़ के आपको चरण स्पर्श करता हूं, कहता हूं कि हे मां, हे शिव शक्ति, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये सत्य की लड़ाई मैं जीतूं। अब तीसरी बात आती है कि हमारा यहां एक व्यक्तित्व है, जब कोई मूर्खतापूर्ण बात करनी होती है तो उसको पार्टी आगे कर देती है, क्योंकि पढ़ना नहीं चाहती उसमें। અને ઈ ભાઈનું નામ છે ગિરીશ કોટેચા। વિકાસ ઝીરો ગિરિયો હીરો। અલ્યા તું હું છે ભાઈ? તું કઈ શંકરાચાર્ય છે? બે સાધુ શાંત થાઓ, બે સાધુ। અલ્યા તું શંકરાચાર્ય આશીર્વાદ આપવા માંગે છે? તું છે હું? અને મેં પહેલા જ કીધું તું કે રાજકારણ વાળા બધાય આનાથી दूर रहो। आज हमारो मामलो छे, हमें जोशो ने प्रश्न पूरे सनातन, गिरनार और सामान्य जन के अंदर गहरा दुख है, जिसको मैं बहुत अच्छे से भली भांति समझता हूं। लेकिन पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यवस्था में सफाई अभियान शुरू होता है तो सफाई करते वक्त धूल उड़ती है, तकलीफ होती है, पर उसके बाद एक स्वच्छ रास्ता, एक सफाई वाला रास्ता मिलता है जिस पर हम सब आगे अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो परिवर्तन पीड़ादायक होता है, इसलिए पीड़ा होगी, पर परिवर्तन के बाद एक सुनहरा भविष्य जरूर होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह आज की प्रेस वार्ता गुजराती में न करते हुए हिंदी में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जो बात आज कहना चाह रहा हूं वो भारत के कोने कोने में पहुंचे, भारत के सभी साधु संतों में पहुंचे और साथ ही हर जनमानस तक यह बात पहुंचे। उसके लिए मैं ये हिंदी में प्रेस वार्ता कर रहा हूं। साथ ही यह प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, जिनके ऊपर मेरी दृढ़ श्रद्धा है, क्योंकि भारत को स्वच्छ करने का अभियान भारत के सरकार के और व्यवस्था के स्वच्छ करने का अभियान उन्होंने भी लिया है। उनसे ही प्रेरणा लेकर के मैं आगे बढ़ता रहा हूं। तो आज मैं अपनी बातें जो बताने जा रहा हूं, खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री और इस गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, उन तक ये बात आप मीडिया वाले जो साथ सहकार देकर के अभी तक सत्य को आगे लेकर के जा रहे हैं, वहां तक भी पहुंचाएंगे, ऐसी प्रार्थना भी करता हूं और आशा भी करता हूं। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में मेरे दाएं ओर हमारे राजू गिरी जी बैठे हुए हैं, मेरे बाईं ओर कौशिक गिरी जी बैठे हुए हैं और ये दोनों संत गिरनार के ही संत हैं। इनका भूतकाल भवनाथ महादेव मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहां पर रमेश गिरी बापू, रघुनाथ गिरी बापू के बाद महंत थे, उनकी अकाल मृत्यु हुई। वो भी एक संदेहास्पद मृत्यु हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। आज ये दोनों साधु और बाकी संत भी जुड़ रहे हैं। देश के कई संतों के मुझे फोन भी आ रहे हैं। मैंने सभी को कहा कि जिस वक्त आवश्यकता होगी मैं आपसे संपर्क करूंगा। तब तक के लिए यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि यदि कोई साथ दे रहा है तो उनको धमकी के फोन जा रहे हैं, उनको लोभ और लालच के फोन जा रहे हैं। भाग बटाई तो पहले भी चलती थी, वही आज हो रहा है। इसलिए मैं किसी को सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं संतों से माफी भी मांगता हूं,
और कहता हूं कि थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, सत्य बाहर आएगा। और जिस दिन मैं आश्वस्त हो जाऊंगा, आप सभी को कहूंगा कि आप साथ में आइए और हम आगे इस स्वच्छता अभियान का काम बढ़ाएंगे आगे। तो 2 अर्जी अब तक घटनाक्रम में पुलिस के पास पहुंची है, जिसमें पीर बाबा तनसुख गिरी बापू के परिवार से एक, उनके ही परिवार में से जो कुछ भी चादर विधि गैर कानूनी ढंग से हुई थी, उसके विरोध में पुलिस को शिकायत दर्ज हुई। कल मुझे पता चला एक और शिकायत पुलिस को हुई है, जो गैर कानूनी ढंग से प्रेमगिरी जी की चादर विधि हुई। उस वक्त उस दूसरी शिकायत में जो छोटे पीर है अंबाजी के, जो ट्रस्टी वहां के छोटे पीर, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि कैसे उनको गाली गलौच और धमकियां दी गई। तो ये किस हद तक बहुत ही खतरनाक और जैसे गुंडागर्दी दादागिरी वाला माहौल वहां पर खड़ा कर दिया गया। और ये मामला गंभीर है, जिसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। मैं पहले तो अखाड़े की तरफ से 2 लेटर दिए गए जो प्रकाशित हुए हैं, उसके बारे में बात करूंगा। मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि अखाड़े का विरोध कभी नहीं था, क्योंकि अखाड़ा भगवान है हमारे लिए। और अखाड़ा जब भगवान है तो उसमें भी हम पूरी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं को ही अखाड़ा समझ ले, तब बहुत दिक्कत आती है। जब अखाड़े की साख को दांव पे लगाया जा रहा है एक व्यक्ति के लिए, तब दिक्कत आती है। इसलिए मैं सभी संतों को पुनः प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप निष्पक्ष होकर के सत्य का साथ दीजिए। यदि आप सभी मिलकर के आगे आकर के बात करना शुरू करेंगे तो सत्य की विजय होगी और अखाड़े की साख, अखाड़े की मान मर्यादा स्थापित होगी। और सभी छोटे साधुओं को भी विश्वास होगा कि सत्य के साथ रहने पर विजय जरूर होती है। तो ये मेरा आग्रह है अखाड़े के सभी। जूनागढ़ शहर के भीतर जो भी घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम की वजह से पूरे सनातन, गिरनार और सामान्य जन के अंदर गहरा दुख है, जिसको मैं बहुत अच्छे से भली भांति समझता हूं। लेकिन पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यवस्था में सफाई अभियान शुरू होता है तो सफाई करते वक्त धूल उड़ती है, तकलीफ होती है, पर उसके बाद एक स्वच्छ रास्ता, एक सफाई वाला रास्ता मिलता है जिस पर हम सब आगे अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो परिवर्तन पीड़ादायक होता है, इसलिए पीड़ा होगी, पर परिवर्तन के बाद एक सुनहरा भविष्य जरूर होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह आज की प्रेस वार्ता गुजराती में न करते हुए हिंदी में इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो बात आज कहना चाह रहा हूं वो भारत के कोने कोने में पहुंचे, भारत के सभी साधु संतों में पहुंचे और साथ ही हर जनमानस तक यह बात पहुंचे, उसके लिए मैं ये हिंदी में प्रेस वार्ता कर रहा हूं। साथ ही यह प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, जिनके ऊपर मेरी दृढ़ श्रद्धा है, क्योंकि भारत को स्वच्छ करने का अभियान भारत के सरकार के और व्यवस्था के स्वच्छ करने का अभियान उन्होंने भी लिया है, उनसे ही प्रेरणा लेकर के मैं आगे बढ़ता रहा हूं। तो आज
मैं अपनी बातें जो बताने जा रहा हूं, खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री और इस गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, उन तक ये बात आप मीडिया वाले जो साथ सहकार देकर के अभी तक सत्य को आगे लेकर के जा रहे हैं, वहां तक भी पहुंचाएंगे, ऐसी प्रार्थना भी करता हूं और आशा भी करता हूं। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में मेरे दाएं ओर हमारे राजू गिरी जी बैठे हुए हैं, मेरे बाईं ओर कौशिक गिरी जी बैठे हुए हैं और ये दोनों संत गिरनार के ही संत हैं। इनका भूतकाल भवनाथ महादेव मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहां पर रमेश गिरी बापू, रघुनाथ गिरी बापू के बाद महंत थे, उनकी अकाल मृत्यु हुई। वो भी एक संदेहास्पद मृत्यु हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। आज ये दोनों साधु और बाकी संत भी जुड़ रहे हैं। देश के कई संतों के मुझे फोन भी आ रहे हैं। मैंने सभी को कहा कि जिस वक्त आवश्यकता होगी मैं आपसे संपर्क करूंगा। तब तक के लिए यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि यदि कोई साथ दे रहा है तो उनको धमकी के फोन जा रहे हैं, उनको लोभ और लालच के फोन जा रहे हैं। भाग बटाई तो पहले भी चलती थी, वही आज हो रहा है। इसलिए मैं किसी को सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं संतों से माफी भी मांगता हूं और कहता हूं कि थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, सत्य बाहर आएगा और जिस दिन मैं आश्वस्त हो जाऊंगा, आप सभी को कहूंगा कि आप साथ में आइए और हम आगे इस स्वच्छता अभियान का काम बढ़ाएंगे आगे। तो 2 अर्जी अब तक घटनाक्रम में पुलिस के पास पहुंची है, जिसमें पीर बाबा तनसुख गिरी बापू के परिवार से एक, उनके ही परिवार में से जो कुछ भी चादर विधि गैर कानूनी ढंग से हुई थी, उसके विरोध में पुलिस को शिकायत दर्ज हुई। कल मुझे पता चला एक और शिकायत पुलिस को हुई है, जो गैर कानूनी ढंग से प्रेम गिरी जी की चादर विधि हुई। उस वक्त उस दूसरी शिकायत में जो छोटे पीर है अंबाजी के, जो ट्रस्टी वहां के छोटे पीर, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि कैसे उनको गाली गलौच और धमकियां दी गई। तो ये किस हद तक बहुत ही खतरनाक और जैसे गुंडागर्दी, दादागिरी वाला माहौल वहां पर खड़ा कर दिया गया और ये मामला गंभीर है, जिसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। मैं पहले तो अखाड़े की तरफ से 2 लेटर दिए गए जो प्रकाशित हुए हैं, उसके बारे में बात करूंगा। मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि अखाड़े का विरोध कभी नहीं था, क्योंकि अखाड़ा भगवान है हमारे लिए, और अखाड़ा जब भगवान है तो उसमें भी हम पूरी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं को ही अखाड़ा समझ ले तब बहुत दिक्कत आती है। जब अखाड़े की साख को दांव पे लगाया जा रहा है एक व्यक्ति के लिए, तब दिक्कत आती है। इसलिए मैं सभी संतों को पुनः प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप निष्पक्ष होकर के सत्य का साथ दीजिए। यदि आप सभी मिलकर के आगे आकर के बात करना शुरू करेंगे तो सत्य की विजय होगी और अखाड़े की साख, अखाड़े की मान मर्यादा स्थापित होगी और सभी छोटे साधुओं को भी विश्वास होगा कि सत्य के साथ रहने पर विजय जरूर होती है। तो ये मेरा आग्रह है अखाड़े के सभी संतों से। अब अखाड़े का पहला पत्र ऑडिट का था और दूसरा पत्र सफाई का था कि हरिगिरी ने कुछ नहीं किया हुआ। तो ऑडिट की जब बात आती है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोई भी काला काम, काली करतूत करता है तो ऑडिट में कभी नहीं आता। जमीन में 2 तरह के रेट चलते हैं, सभी को पता है।
एक होता है जो सरकारी कागज पे लिखा जाता है, जंत्री जिसको गुजरात में कहते हैं, उसका रेट, और एक होता है मार्केट का रेट। तो ऑडिट में वो लिखा जाता है जो सब कुछ एक नंबर में हुआ होता है। 2 नंबर में जो हुआ होता है काली करतूत वाला, वो ऑडिट में कभी नहीं रहता। तो ये एक सोचने वाली बात है। मैं ये कभी नहीं कहा हूं कि अखाड़े ने गलत किया है, मैं ये कह रहा हूं कि हरिगिरी ने गलत किया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हरिगिरी ने कुछ किया नहीं किया, सफाई की बात हम प्रतीक्षा करेंगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व थोड़े दिनों में बाहर आ ही जाएगा। या तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा या वो झूठे साबित हो जाएंगे, तब सत्य पता ही चलेगा। और जब व्यक्ति ही झूठा निकल जाए तो फिर उसकी सफाई जब हमने दी है तो वो तो डरा धमका के और कितनों के पास क्या क्या बुलवाता है। तो ये बात, दोनों का खंडन यहीं पर हो जाता है जो मैंने अभी आपके सामने बात रखी। अब आगे की बात जब मैं करता हूं कि हरिगिरी महाराज जी का एक पत्र मैंने जारी किया था मीडिया के समक्ष। अब वो पत्र जब उन्होंने कहा कि इसको झूठी तरह के फ्रॉड कर दिया है महेश गिरी ने, उस पत्र के ऊपर दूसरा कागज रख करके कुछ लिख करके दिया है। पहले कहा कि ये मेरा है ही नहीं, फिर कहा कि दूसरा कागज रख दिया। अरे तुम एक बात पे तो टिको हरिगिरी महाराज, एक बात पर तो टिको। अब बताओ, मानसिक सारावार की जरूरत है मुझे या आपको? और यदि आपके पास कोई अच्छा डॉक्टर है भारत भर में तो बताइए, हम दोनों मिलकर के सारावार ले लेंगे। पर एक बात पे टिकिए। एक कागज पे दूसरा कागज रख के सिग्नेचर करवाया, क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ आपने जो बातें बताई, मैं आज उसकी भी सच्चाई पेश करूंगा। सब आपने कहा कि लेटर फ्रॉड है। महाराज, मुझे तो पता है कि सब झूठ है। अमित भाई जैसा व्यक्तित्व, आप जानते कितना हो उनको। संतों का आशीर्वाद लेने की भावना रख करके आपको मिले थे, अखाड़े में लेकर के मैं आया था, क्योंकि आशीर्वाद की भावना लेकर के वो आए थे। उनका नाम लेकर के झूठा प्रचार करते हो। जो सरकार इस देश और धर्म के लिए, सनातन के लिए तटस्थ होकर के आगे चलती है, श्री राम मंदिर का निर्माण जिस सरकार ने किया, उनके साथ आप जो फ्रॉड और षड्यंत्र कर रहे हो, मुझे उसको सामने लाना था कि आप क्या क्या कांड करते हो। ये बात बताने के लिए वो पत्र जारी किया था और सत्य बाहर आना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे पता है कि सत्य क्या है, पर यह व्यक्ति आपके नाम से कैसे फ्रॉड करता है, ये बताने के लिए पत्र जारी करना बहुत जरूरी था, ताकि पता चले कि यह कितना खतरनाक गुनाह है और इसकी सजा इसको मिलनी ही चाहिए। अब पत्र की बात जब मैं कहता हूं कि पत्र सच है या नहीं, हमारे यहां पर जो राजूगिरी जी महाराज है, ये महाराज जी ने लड़ाई लड़ी भवनाथ को लेकर के। कौशिक गिरी जी महाराज है, इन्होंने लड़ाई लड़ी भवनाथ मंदिर को लेकर के, क्योंकि उनके गुरु की समाधि वहां पर है, परंपरा वहां पर है। और लड़ाई लड़ने के बाद उनको प्रताड़ित किया गया, उनको कोई जवाब नहीं दिया गया, ऊपर ऊपर से गोल गोल जवाब करके घुमाया गया। प्रताड़ित करने के बाद हताश होकर के बैठ गए वो। आप सोचिए कितना बड़ा अत्याचार है ये। वो सच है या नहीं, ये तो सरकार तय करेगी, प्रशासन तय करेगा, पर प्रताड़ित करके, हताश करके उनको इस तरह से पागल करने का कार्य कर रहे हैं आप, कि कितना योग्य है। ऐसे कई आश्रमों के साथ आपने किया है महाराज। अभी तो आपकी जांच जब शुरू हो जाएगी ना, यदि सच में केंद्र सरकार जांच शुरू कर देगी, तो मैं आपको कहता हूं देश का सबसे बड़ा कांड आपके नाम से निकल सकता है।
क्योंकि इतने सारे कांड आपके हैं, इतने सारे कांड आपके हैं। अब जो पत्र की बात पर फिर लौट के मैं जब बात करता हूं कि वो इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, तो इन्होंने सरकार में बकायदा अर्जी दी कि भवनाथ मंदिर के जो कागजात है वो मुझे आधिकारिक रूप से मिले, और सरकार की कचहरी से आधिकारिक रूप से कागजात उन्होंने जो लेने की मांग की, तो सरकार ने कहा कि आपको फीस भरनी पड़ेगी। तो इन्होंने वो फीस भरी कागज लेने के लिए, और फीस भरने के बाद ये लगभग 500-600 पन्नों का पूरा फाइल इनको सरकार की तरफ से मिला है, सरकारी कचहरी की तरफ से। अब आपको देखना होगा कि अगर लेटर फ्रॉड है तो फिर इसके अंदर वो कागज आया कैसे, क्योंकि ये तो आपके जमा किए हुए कागजात है। भवनाथ मंदिर आपको हड़पना था, उसके लिए जो आपने कागज वहां जमा करवाए उसमें वो कागज था, आपके द्वारा दिया हुआ कागज था महाराज। क्योंकि जब आपने जमा करवाया उस कागजात को, तो आपको यह पता नहीं था कि गिरनार एक ऐसी जगह है जहां लोग पाप धोने के लिए आते हैं। अगर पाप करने के लिए आएगा तो उसका सत्यानाश होगा, उसका सत्यानाश होगा। और वो अब पाप पुकार पुकार के आपको बोल रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कागज आपके द्वारा जमा किया हुआ है हरिगिरी जी महाराज। अब आप देखना फ्रॉड, ये अब ये आपने जो कहा ना मैं सन्यास छोड़ दूंगा और फांसी पे लटक जाऊंगा और कुछ, मैं तो कहूं आप जो तैयारी करना कर लो महाराज। क्योंकि अगर कागज झूठ होता तो एफएसएल में जाता, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, पर आपने ही जमा किया हुआ कागज है तो इसको तो अब तो एफएसएल में भेजने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में यह कागज है। आपको तो तुरंत ही हिरासत में ले लेना चाहिए, तुरंत ही हिरासत में लेना चाहिए, क्योंकि आपने सरकार को झूठ बताया, आपने सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच के ये कागज में जो एल फेल लिखा हुआ है, या ये सच है झूठ है अब आपको ही पता, पर सरकार के भीतर ये कागज आपने दिया, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों के भीतर का ये कागज है। अब इसकी बात मैं बताऊं आपको, मैं मीडिया को इसकी कॉपी भी भेज दूंगा। उस वक्त बहुत सारी बातें हुई थी, ये देख लीजिए, ये वो कागज है। इसके नीचे आप देख सकते हैं कचहरी का सिक्का, कौन सी तारीख को लिया गया वो तारीख भी इसमें लिखी गई है, वो मैं आपको दे दूंगा। आप समझ रहे हैं? तो ये सरकारी दस्तावेजों में से कागज है और इसके पेज नंबर होते हैं। जब सरकार कागज दस्तावेज बनाती पेज नंबर होते हैं, उस पर पेज नंबर भी आपके पास पहले की कॉपी उसमें लिखा हुआ है, आप देखना। तो ये तारीख जो है, अब देखो 4/2/2021 है शायद ये तारीख, 4/10/2021, 4/10/2021। तब तो आपका मेरा कोई विवाद ही नहीं था, तब तो कोई विवाद ही नहीं था। तो ये कागज मैंने तो नहीं रखा, सरकार खुद तो रखेगी नहीं। भवनाथ के लिए आप उसको हड़पना चाहते थे और भवनाथ के लिए कागजात तो आपने जमा कराए थे, तो ये कागजात तो आपके द्वारा जमा किया हुआ कागजात है महाराज। अब आप बचोगे कैसे महाराज? जेल जाने की तैयारी कर लो, जेल जाने की तैयारी, क्योंकि इसको तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होता तो लेबोरेटरी में भेजा जाता। ये तो आपके द्वारा जमा किया हुआ कागज है। और ये इस पे देखो, हर कागज पे देख लीजिए आप, सिक्का लगा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, पर अभी पत्र की बातें हम करेंगे। तो ये बात अब तय है कि महाराज आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। अच्छा होगा, शायद भगवान गिरनार माफ कर देगा कि आप स्वयं कबूल कर ले कि हाँ यह गुनाह आपसे हुआ है, तो थोड़ी सजा शायद कम हो सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि अब गिरनारी आपको छोड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है महाराज। और मुझे तो लगता है जिन गरीब साधुओं को पीड़ा पहुंचाई है, ये सब हाय लग रही है, ये सब बार बार आके बोल रहे हैं। और अब तो धीरे धीरे बहुत सारे साधु महात्मा जो कांड आपने किए हैं ना, बाहर आके अब स्वयं बोलेंगे
क्योंकि ये अब रुकने वाला नहीं, अब सफाई अभियान शुरू हो चुका है। तो इतना याद रखिएगा महाराज। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगा कि राजू गिरी जी महाराज, इन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में गए, हताश हो गए, अधिकारियों को कितनी बार मिले, इस कागजात में सब कुछ है। आप लोग वहां से जमा करवा लेना कागजात, तो आपको 500 पन्ने की फाइल आपको भी मिल जाए। इतने वो लड़े हैं, पर हताश होकर के बैठ गए। कौशिक गिरी जी महाराज अपने गुरु का स्थान होते हुए भी एक गांव में बैठे हुए हैं, हताश होकर के कितने लड़े। उनकी ये फाइल है, ये देख लो, ये कौशिक गिरी महाराज की फाइल है। ये राजू गिरी जी महाराज की फाइल। एक और अमर गिरी जी महाराज, वो भी लड़ रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोर्ट में केस भी चल रहा है इसके खिलाफ। अब 3 साधु, मैं, राजू गिरी, कौशिक गिरी, ये सीधा सीधा लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के जो यहां पर कचहरी है उसमें कई बार आवेदन किया, फिर एमएलए साहब ने भी आवेदन किया, अमर गिरी जी ने भी आवेदन किया। तो 5-5 व्यक्तित्व बार बार ये सब कर रहे। तो ये हरिगिरी जी महाराज के षड्यंत्र कितने बड़े होंगे, इसका आप सभी को अंदाजा आना चाहिए कि किसी को कोई जवाब ही नहीं दिया गया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया गया। बहुत गंभीर बात है। आगे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुंभ मेला आ रहा है, कुंभ मेले में सब स्नान करने जाते हैं। मैं तो सभी साधु संतों, सभी आचार्यों से प्रार्थना करूंगा, महाराज हम गरीब साधुओं की प्रार्थना सुन ले, आप सभी बड़े बड़े संत महात्मा, सभी अखाड़े, कि ये कुंभ मेला धर्म व्यवस्था के परिवर्तन का, ये कुंभ मेला धर्म व्यवस्था के शुद्धिकरण का मेला बन जाए। सनातन में ऐसे लोग जो इसको दूषित कर रहे हैं, इनको बाहर निकालिए और हमारी व्यवस्था, धर्म व्यवस्था का शुद्धिकरण कीजिए प्रभु। हम सभी आचार्यों को, सभी साधु संतों को 2 हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को विनती करते हैं कि सनातन के हम सच्चे सिपाही हैं, पर गरीब साधुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, भस्म रगड़ के भगवान के सिवा जिसको किसी की पड़ी नहीं है, उसकी वजह उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे साधु संतों के लिए मैं तो केवल उनके लिए एक दीवार बन के खड़ा हूं, उनको तकलीफ ना हो इसलिए। बाकी मेरा कोई आशय नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गादी पे हावी हो जाऊंगा और ये करूंगा। सत्य बाहर आना बहुत जरूरी है, सत्य बाहर आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आगे की बात के लिए बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि तनसुख गिरी महाराज के समाधि को मैं तभी श्रद्धांजलि दूंगा जब भवनाथ मंदिर से हरिगिरी महाराज को बाहर किया जाएगा या वो त्याग पत्र दे देंगे, तब तक श्रद्धांजलि नहीं दूंगा। और उसी तरह से एक संकल्प और भी लिया था कि जब तक हरिगिरी महाराज को मैं भवनाथ मंदिर से बाहर नहीं निकालूंगा या वो त्याग पत्र नहीं देंगे, भवनाथ मंदिर के अंदर बाहर से दर्शन करूंगा। तो ये संकल्प लेकर के आगे चल रहा हूं। तो मैं इसी संकल्प को दोहराते हुए ये कहना चाहूंगा कि कई तरह के लोग आगे आए और कई तरह के लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले महेंद्रानंद गिरी जी, उन्होंने अभी कुछ बोला और ये बोला कि गोडाउन भरे हुए हैं, फिर ये भी बोला कि भवनाथ आएंगे तो बीच में मुचकुंद गुफा आती है, ये याद रखना। महाराज मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं क्योंकि आप इस लड़ाई में है ही नहीं। हरिगिरी महाराज को मैं 30 वर्षों से 35 वर्षों से जानता हूं। तब आप ना तो चेला बने थे, जन्म हुआ होगा नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी उम्र का मुझे अंदाजा नहीं है,
आपसे अनन्य प्रेम करता हूं, इसीलिए परिक्रमा मेले के वक्त मैं स्वयं आपके वहां आया था, आपके मुचकुंद गुफा आया था, आपको मिला था, आपको मैंने ये भी बताया था कि ये लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी हरिगिरी जी के साथ है, आपके गुरुजी है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, पर आपके और मेरे बीच में ये लड़ाई नहीं है। आप इससे दूर रहिएगा, क्योंकि ये तो हमारी वर्षों के पहचान है और जो गलत हुआ है उसके साथ की लड़ाई है। पर उसके बावजूद मैंने आज तक आपका नाम कभी नहीं लिया महाराज, क्योंकि मैं मर्यादा जानता हूं। और जब इतने प्रेम से भेंट हुई हमारी, तो मैंने नाम तक नहीं लिया था, और आपने इस तरह की बात कह दी और धमकी की बात कर दी महाराज। मैं तो क्या कहूंगा, मैं आपकी धमकी स्वीकार करता हूं, आपसे प्रेम करता हूं, आपकी धमकी स्वीकार करता हूं, और आपको यह भी कहता हूं कि भवनाथ जब जाऊंगा तो मुचकुंद गुफा दर्शन करके ही जाऊंगा। चाय अगर आप पिलाएंगे तो वो भी पी के जाऊंगा, पर अब तो मुचकुंद गुफा से ही जाऊंगा, क्योंकि महाराज थोड़ा सा ऐसा ही साधु हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या करें, अब प्रेम करना मेरा स्वभाव है, तो चाय पी के ही जाऊंगा महाराज जी, इतना आपसे कहूंगा। तो आगे मैं आपसे केवल प्रार्थना करूंगा कि इससे दूर रहिएगा, क्योंकि ये आपके साथ लड़ाई नहीं है, आपके साथ लड़ाई नहीं है। दूसरा, एक और वक्तव्य आया किन्नर अखाड़े से, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का, हे शिव शक्ति माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे मां जगत जननी, आप तो आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है मां। यदि आप आशीर्वाद देगी तो ये सत्य की विजयी, मैं इस लड़ाई को मैं जीत जाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। अधूरी जानकारी के साथ आपने जो भी मेरे लिए बोला, मैं उसको भूलने के लिए तैयार हूं, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के लिए आपने समर्थन व्यक्त किया है, हो सकता है कोई संबंध आपका उनका हो, क्योंकि मेरा आपका सीधा परिचय कभी नहीं हुआ, तो आपको व्यक्तित्व मेरा पता नहीं है। और एक बात कि आपने, आपका मेरा कोई संबंध ना होते हुए भी आपने वीडियो जाहिर कर दिया, ये कितना योग्य है। ना तो मैं आपके अखाड़े से हूं, ना आप मेरे अखाड़े से हैं। सन्यास और गुरु के बारे में आप बातें कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद जो अंग्रेजों को पाठ जब सिखाने गए थे, तो वो भी सूट बूट में गए थे, क्योंकि जो जैसा व्यक्ति और देश होता है वैसा भेष पहनना पड़ता है माता। पर सन्यास इधर होता है, केवल इसके साथ ही नहीं जुड़ा होता, ये उसका अंग है। तो माता, मैं फिर से प्रार्थना करता हूं कि प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, सत्य बाहर आएगा। और मैं दो हाथ जोड़ के आपको चरण स्पर्श करता हूं, कहता हूं कि हे मां, हे शिव शक्ति, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये सत्य की लड़ाई मैं जीतूं। अब तीसरी बात, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, इसलिए बताना जरूरी है, और मुझे लगता है कि इसको गुजराती में बोलना चाहिए। किसी को बेवजह देश का हीरो क्यों बनाऊं, तो गुजराती में ही बोलना अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बात आती है कि हमारा यहां एक व्यक्तित्व है, जब कोई मूर्खतापूर्ण बात करनी होती है तो उसको पार्टी आगे कर देती है, क्योंकि पढ़ना नहीं चाहती उसमें। અને ઈ ભાઈનું નામ છે ગિરીશ કોટેચા। વિકાસ ઝીરો ને ગિરિયો હીરો। અલ્યા તું હું છે ભાઈ, તું કઈ શંકરાચાર્ય છે? બેય સાધુ શાંત થાઓ, બેય સાધુ। અલ્યા તું શંકરાચાર્ય આશીર્વાદ આપવા માંગે છે? તું છે હું? અને મેં પહેલા જ કીધું તું કે રાજકારણ વાળા બધાય આનાથી દૂર રહો। આ જે અમારો મામલો છે અમે જોશું અને પ્રશાસન જોશું। તું છે શું? આ હું કે બે જણા શાંતિઓ તું ઠેકો લઈ રાખ્યો છે તે જુનાગઢનો ધર્મનો ઠેકો લઈ રાખ્યો છે? મગજ ફાટી જશે મારું। જુનાગઢ બદનામ થઈ રહ્યું છે તો તે હું નામ કમાયું જુનાગઢનું?
2-3 અઠવાડિયા પહેલા તને ખબર છે શું થયું હતું ગિરનારમાં? ગિરનારના ઉપર પરિક્રમાના મેળામાં એક 14 થી 16 વર્ષની દીકરી જેને પેશાબ લાગી હતી, એ પેશાબ માટે એને જગ્યા નહોતી મળતી, આટલા બધા લોકો હતા, કોઈ બાથરૂમ ત્યાં નહોતું, એ છોકરીને જબરદસ્તીથી પેશાબ પોતાના લહેંગામાં કરવો પડ્યો. મારી દીકરીને લહેંગામાં પેશાબ કરવો પડ્યો લોકોના સામે. ત્યારે મારા ગિરનારના ડોળીવાળા, મારા ગિરનારના દુકાનવાળા એ બધા ભેગા થયા ને એને આડાશ કરીને એના કપડાં બદલાવવા માટે આગે આવ્યા. મારી મગજના ફેરવતું એક બાથરૂમ તું બાંધી નહીં શક્યો. આ જુનાગઢનું સત્યાનાશ થયું છે, એમાં સી ફાળો કોનો છે આ જુનાગઢને વિચારવું પડશે. પૂરી શાક વેચીને બંગલા ન બાંધી શકાય. હું આવીને વાતો કરે છે, તું વાત કરે છે શાંતિઓ શાંતિઓ. તું શંકરાચાર્ય છે અમારો? અને આ કૌભાંડોની લિસ્ટ કાઢી, તારું નામ પહેલા કૌભાંડમાં અત્યારે કહું છું, હજી તો દુનિયાભરનું છે. આ તું બોયલો એની નસ પકડાઈ ગઈ છે કે આ તું શા માટે બોયલો. આ જો ભવનાથ મંદિર ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું છે. આ ભાઈને હડપવું તું, ગિરીશને, ભવનાથ મંદિરને. એટલે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું જે ધાર્મિક ટ્રસ્ટ છે, આ ભાઈએ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ બનાવીને પોતે ટ્રસ્ટી થવા માટે અપીલ કરેલી. એના કાગળો શૈલજા દેવીજી એના અધ્યક્ષ. મને શૈલજા દેવીજીના પ્રત્યે કંઈ કહેવું નથી, પણ તમે શાંત રહેજો તો સારું છે, કે નહીં તો પછી મને આ બધું બારે કાઢવું પડશે. એટલે શૈલજા દેવીજી જે છે પુનિતાચાર્ય આશ્રમના, એના માટે હું કંઈ જ નહીં કહું. પણ જો કંઈ મારા વિશે વાતો કરશો તો હું ઈ પણ કાગળો બધા બારે કરીશ કે આ મંદિર હડપવા માટે શું શું થયું હતું. તો આ તમને જે હું વાત કરવા માંગુ છું, આના અંદર તમે લોકો જોશો તો જુનાગઢના લોકોને ખબર પડશે કે આ જો આ જે ભાઈ શાંત કરાવવા માંગતો હતો, એ શાંત કરાવવા પાછળ મંદિર હડપવાની તૈયારી ચાલુ હતી. આ જો ગિરીશ કોટેચા ટ્રસ્ટી થવા માટે અરજી કરેલી, જે એક ધાર્મિક ટ્રસ્ટ છે, સાધુ સંતોના જેના આદિ અનાદિકાલથી ચાલી રહ્યું છે, આ હડપવાની તૈયારી કરેલી. આની તમને હું કોપી આપીશ. અને આ એક જ કાગળ આપ્યો છે. હું જુનાગઢમાં ઘૂસ્યો નથી, રાજકારણની વાત મેં કરી નથી, એટલે હું બીજી વાત નહીં કરું. ગિરનાર અને ધર્મ સિવાય બીજી વાત નહીં કરું. હું ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટીને, પીએમ સાહેબ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને, અમિત શાહજીને અને આપણા મુખ્યમંત્રી સાહેબને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષને વિનંતી કરીશ, બહારનું પાપ લાવીને આ પાર્ટીને બદનામ કરે છે. જુનાગઢના સત્યાનાશમાં સિંહ ફાળો કોનો છે આ જુનાગઢે નક્કી કરવું જોઈએ. અને આવા બહારના પાપ લાવીને આ પાર્ટીઓ અને રાજકારણ દૂષિત થાય, આને બારે કાઢી મુકાય. સાધુ સંતોને સલાહ આપે છે તું. ભાઈ સફાઈ અભિયાન ચાલુ છે, ધૂળ ઉડશે એટલે હવે પછી મને નથી કેવું કે કોના ઘરમાં કયા કર્મચારી કામ કરી રહ્યા છે. એટલે શાંતિ રાખો. હવે જો કોઈ બાઈટ આવી સલાહ આપતી વખતે તો એટલું યાદ રાખજો, હું જુનાગઢમાં ઘૂસીશ પછી કોણ કોના કામમાં પાર્ટનર છે, કોણે આ તળાવ છે એના દૂધણું 18 વર્ષથી ચાલુ છે, શું છે, પૂરી શાક બાંધ્યા પછી બંગલા બંધાય નહીં ભાઈ, બધું બહાર આવશે પછી. એટલે કહું છું હજી પણ કે શાંત રહો, દોડાયા ન થાવ, આંગળી ના કરો. એટલે આ વાત મહત્વની બતાવવી જરૂરી હતી. વિકાસ હીરો ગીરીઓ હીરો બતાવો. કોની વાત કરાવી દીધી યાર. હવે અંતે જ વાત કરીશ, કેમ કે હમણાં થોડી વાર પહેલા સરકારશ્રીના પ્રતિનિધિ તરીકે મને અહીંના એમએલએ સંજયભાઈ કોરડિયા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના
જૂનાગઢના અધ્યક્ષ પુનિતભાઈ શર્મા એ સરકાર તરફથી સંદેશો લઈને આવ્યા હતા. હું પ્રેસ વાર્તા પૂરી કરું પછી રાજુ ગિરીજીનું વર્જન તમારે ચોક્કસ લેવું જોઈએ, કૌશિક ગિરીજીનું વર્જન તમને ચોક્કસ લેવું જોઈએ. તેથી ખબર પડશે કે આ લડાઈ લડેલા છે આ લોકો, પણ હતાશ થઈ ગયા હતા. એટલે હું મીડિયાને આગ્રહ કરીશ કે તમે સત્ય માટે ઊભા રહ્યા છો તો આ થોડુંક વર્જન આમનું પણ લેજો. तो अंते बात जो मैंने करवानी चाहिए, तो अंत में जो मैं बात करना चाहता हूं वो यह करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी और उनके विश्वास दिलाने के बाद यहां के कलेक्टर श्री, यहां के एसपी श्री, इन सभी के अंदर जो बातें मुझे सरकार के द्वारा बताई गई उसमें मैं दृढ़ श्रद्धा रखते हुए ये कहना चाहता हूं, उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि ये जांच जो तपास या तहकीकात होगी ये निष्पक्ष होगी और सत्य के साथ होगी, ये मुझे उन्होंने भरोसा दिलाया है. उन्होंने एसपी, कलेक्टर श्री, गुजरात सरकार और इन सब की तरफ से गुजरात सरकार का संदेश भेजा है कि ये निष्पक्ष जांच होगी. तो उनकी बात को मानकर, क्योंकि सरकार ने संदेशा भेजा और मेरी गुजरात सरकार में दृढ़ श्रद्धा है, ये जो संदेश आया उसके बाद कलेक्टर श्री के लिए भी जो मैंने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं है, आज मैं कहता हूं सरकार का भरोसा मिलने के बाद कि मुझे अब कलेक्टर में भी विश्वास है. एसपी श्री के बारे में तो बात ही नहीं हुई थी, पर मुझे उनके अंदर भी विश्वास है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे और सत्य को बाहर लाएंगे और दोषी को सजा देंगे. ये आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि उन्होंने मुझे ये भरोसा दिलाया है. उन्होंने ये कहा है कि जांच जब होती है, तहकीकात होती है, तो एक दो दिन में सब कुछ नहीं हो जाता, थोड़ा वक्त लगता है. तो धीर गंभीर होकर के जांच होगी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा. तो 1 तारीख को जो मैंने कहा था कि 1 तारीख को मैं भवनाथ खाली कराने जाऊंगा, क्योंकि अब सरकार ने संदेशा भेजा है तो सरकार सर्वे सर्वा होती है, निर्णय वही होता है और उन्होंने भरोसा दिलाया है. तो बेवजह अतिशयोक्ति करना अच्छा नहीं है और मैं बहुत संभल के चलने वाला व्यक्तित्व हूं. तो थोड़े दिन के प्रतीक्षा के लिए मैं भी तैयार हूं. थोड़े दिन में सत्य बाहर आएगा तो जब मुझे मेरा धैर्य टूट जाएगा कि अब और राह नहीं देखी जा सकती, प्रताड़ित हुए जा रहे हैं सभी, तब जाकर के आगे का निर्णय लूंगा. पर यह तय है, या तो विजय उत्सव वहां पर जाएगा या तो खाली करवाने के लिए भवनाथ जाएंगे. दोनों में से कुछ भी होगा, पर थोड़े ही समय में ये होगा. अब क्या होगा ये तो जांच के बाद पता चलेगा. पर मेरा फिर से कहता हूं दृढ़ विश्वास एसपी में, कलेक्टर श्री में, गुजरात की सरकार में और आए हुए जो 2 प्रतिनिधि जो एमएलए और अध्यक्ष श्री उनमें है. और उस विश्वास के साथ मैं कुछ दिन के लिए इस अपनी 1 तारीख को जाने की जो बात है उसको रोक रहा हूं और निष्पक्ष जांच होने के लिए थोड़े समय के लिए जो कुछ भी बाहर आएगा तब मैं आगे की बात करूंगा. और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे को मेरा गिरनार वापस दे दीजिए जो सनातनी था. मुझे मेरा सनातन वापस दे जो दोष रहित और दूषण रहित है. मेरा गिरनार मैं ऐसा चाहता हूं कि ये भगवा पहन के दारू पी के धिंगाना कर रहे ऐसे साधु, बताइए, ये भगवा पहनकर भीख मांग रहे हैं, ए माई इधर आ, ए माई, ये साधु मेरा साधु ऐसा नहीं है. बाप मेरा साधु तो जब भस्म रगड़ के धुनी पर बैठता है, परमात्मा को चित्त लगा देता है, पूरा ब्रह्मांड उसके चरणों में आके उतरता है, दर्शन करने जाता है, प्रदर्शन देखने नहीं जाता. पर यह भर्ती मेला जो चालू हुआ है, भर्ती मेला, उस भर्ती मेला की वजह से हर तरह के लोग आते हैं,
रात को पूरी शाक तल रहे हैं और सुबह साधु बन गए અને કિન્નર અખાડાને કહીશ કે આ તમારા ગિરિયાને મહામંડલેશ્વર બનાવો, તમારા અખાડોનો અમને નથી જરૂર, આ જુનાગઢમાં આની જરૂર નથી સાહેબ, અને તમે તમારો મહામંડલેશ્વર બનાવવાને આશીર્વાદ દેવાની ખૂબ અભિલાષા છે. એટલે મારો ગિરનાર મને જોઈએ છે બાપ, જ્યાં મારી દીકરીઓ निर्भय થઈને રાતના 2 વાગે જાય તો સાધુને પગે લાગતા એને શરમ ના થવી જોઈએ, એને ભય ન લાગવો જોઈએ, એવો गिरनार હું ઈચ્છું છું. तो सभी को मैं प्रार्थना करूंगा ये भर्ती में लाओ. एक डॉक्टर बनने के लिए भी पैरामीटर होता है, एक इंजीनियर बनने के लिए भी पैरामीटर होता है, साधु बनने के लिए भी तो पैरामीटर होने चाहिए ना. पहले तो 10-10, 12-12 साल चेले को रगड़ते थे कहने के अच्छे से उसकी सेवा करके पात्र कैसा है ये देखते थे, तब जाके चेला बनाते थे. आज तो रात को मैंने कहा पूरी शाक तल रहा है, सुबह चेला बना दिया. अब उससे क्या अपेक्षा रखेंगे? तो भगवा पहनकर आतंकवादी भी पकड़े गए हैं, भगवा पहनकर विधर्मी भी पकड़े गए हैं. तो ये भगवे की लाज रखने के लिए कोई तो कायदा बनना चाहिए. सभी धर्माचार्यों को कहूंगा कि हमारे संप्रदायवाद की वजह से सनातन टूट रहा है, अखाड़ा परिषद 2 भागों में बट गई है. ये किसकी वजह से सब हो रहा है? मेरा सनातन मुझे वापस चाहिए साहब, मेरा सनातन, મને મારો સનાતન પાછો જોઈએ, મને સ્વામિનારાયણ પણ જોઈએ, નમો નારાયણ પણ જોઈએ અને બધા જ જોઈએ. અરે ઘરમાં બેસીને યાર બધા મળીને આપણે ભેગા થઈને નિર્ણય લઈ લેશું યાર, પણ આ સનાતન પાછો આપો યાર, આ નહીં ચાલે. અને આ યોગીજીએ ન કીધું કે બટેંગે તો કટેંગે, આવી હાલત થઈ જાય હો. એક रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इतना याद रखो. बस હવે તો ભેગા થઈને આગળ ચાલશું, એટલું યાદ રાખો સાહેબ. હવે આગળ આવો. આ જ્ઞાતિના વાળા, આ આયરના બાપુના, મેયરના બાપુના, આના બાપુનું, ઓલા બાપુના, પટેલના બાપુ, અરે આ શું ચાલ્યું યાર? તમે ધર્મમાં પણ આ જ્ઞાતિવાદ ઘુસાડી દીધો. ક્યાં આપણે જઈ રહ્યા છે યાર? થોડીક તો થોડો વિચાર કરો. જ્યાં હું એકલો અત્યારે બધા આવા મહાત્માઓને લઈને ગિરનારની વાત કરું છું કે તમે બધા આવો તો તમને ત્યાં દર્શન કરવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ. બધા જુનાગઢવાસી, ગુજરાતના લોકોને બધાને કહું છું કે આપણે બધા સાથે મળીને ને આપણે આ દૂષણ સામે લડવું છે. તો સાહેબ એક થાજો યાર, એક થાજો. જ્ઞાતિનું સ્વાભિમાન રાખો, પણ તમે હિન્દુ હોવાનો, સનાતની હોવાનો ગૌરવ રાખો. અને સમસ્યા આવે ત્યારે બધા ભેગા. હું કથા કરાવી રહ્યો છું યાર, અહીંયા 18 વરણની હું કથા કરાવી રહ્યો છું. 18 વરણના મેં પાટલા રાખ્યા છે. મારા ત્યાં રોટલી બનાવવા વાળો વાલ્મીકી છે, પાણી પીવડાવવા વાળો ચમાર જ્ઞાતિનો છે યાર. મેં કોઈ દિવસ પૂછ્યું નથી તારી જ્ઞાતિ શું છે. આવું હોય યાર, જન્મથી કાંઈ જ ન થતું મારા વાલા. બધા ભેગા થઈએ, બધા આમ ભેગા થઈને સનાતનની રક્ષા કરશું. તમે જોજો કેવી રીતના આપણે આ ગુજરાતનું ગૌરવ, આ દેશનું ગૌરવ વધારી શકીએ. આ બોલીને હું 2 હાથ જોડીને આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. દેશભરના સાધુ સંતોએ મને સાથ આપ્યો, જૂનાગઢના નાગરિકો, ગુજરાતના અને દેશના નાગરિકોએ સાથ આપ્યો, તેમજ બધાએ સાથ સહકાર, ધમકી મળ્યા છતાં પણ સાથે રહ્યા. પત્રકાર ખાસ કરીને સત્યના સાથે રહ્યા. એના માટે હું સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું, હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય ગિરનારી, નમો નારાયણ. અને હું આપને કહીશ કે રાજુગીરીજી અને કૌશિકગીરીજી આમનું વર્જન પણ તમે થોડુંક લેજો. જય ગિરનારી. જ્યારથી રઘુનાથગીરી બાપુ ભવનાથમાંથી એના પછી આમ એવું છે કે આખા આંબામાં જઈએ ને સાહેબ, તો આંબામાં જઈએ તો અંબાજી, ભવનાથ અને બધું એક પેલામાં હતું, પછી 2 ફાટા પડ્યા. અને આવું ઘણી બધી જગ્યાએ આવું થયું છે. અને એવું થાય કેમ કે એક બાપના 2 દીકરા હોય, એક બાપના 4 દીકરા હોય તો ફાટા પડે. પણ પરંપરા મુજબ શું છે એ બહુ જોવાનું મહત્વ હોય. તો અત્યારે બહુ લાંબુ ન જવું, સરકાર એની તપાસ કરશે. પણ રઘુનાથગીરીજી પછી એમના ચેલા રમેશગીરીજી હતા, એમના ગુરુભાઈ અમરગીરીજી હતા. રમેશગીરીજીના ચેલા તમે અહીંયા બેઠા છે, જોઈ શકો છો. પણ એ બધું નેવે મૂકીને શૈલજા દેવીજી, જેને કઈ લેવા દેવા જ નથી, પહેલા શરૂઆતની વાત કરું, એમને કઈ લેવા દેવાનું કારણ વગરના આટલું સરસ એમનો આશ્રમ, તોય આમાં ઘૂસ્યા. એક મિનિટ આમાં ઘૂસ્યા. અને એમાં ઘૂસ્યા પછી પેલા
હરિગીરીજીને આપવામાં આવ્યું, પછી આવા બધું ચાલતું રહ્યું. મને લાગે કે આ તપાસ થવી જોઈએ. અને જયશ્રીકાનંદ ગિરિજી તો ગિરનારના પીઠાધીશ બન્યા છે, કરોડો રૂપિયા અખાડાને આપ્યા, મંદિરોને આપ્યા, સાધુઓને આપ્યા, એનું નામ લખ્યું, તમે એને 25 લાખ આપ્યા. હવે આ જયશ્રીકાનંદજી આમ ખાલી પલ્લું ઝાડે તો 10 હરિગીરીજીમાંથી પડી જાય. બોલો, બીજું કોઈ પ્રશ્ન હોય આપને? રાજુગીરીજી મહારાજ, અને ઈ ભાઈનું નામ છે ગિરીશ કોટેચા. વિકાસ ઝીરો ને ગિરિયો હીરો. અલ્યા તું હું છે ભાઈ? તું કઈ શંકરાચાર્ય છે? બે સાધુ શાંત થાઓ, બે સાધુ. અલ્યા તું શંકરાચાર્ય આશીર્વાદ આપવા માંગે છે? તું છે હું? અને મેં પહેલા જ કીધું તું કે રાજકારણ વાળા બધાય આનાથી દૂર રહો. આ જે અમારો મામલો છે અમે જોશું અને પ્રશાસન જોશું. તું છે શું? આ હું કે બે જણા શાંતિઓ તું ઠેકો લઈ રાખ્યો છે? તે જુનાગઢનો ધર્મનો ઠેકો લઈ રાખ્યો છે? મગજ ફાટી જશે મારું. જુનાગઢ બદનામ થઈ રહ્યું છે તો તે હું નામ કમાયું જુનાગઢનું? 2-3 અઠવાડિયા પહેલા તને ખબર છે શું થયું હતું ગિરનારમાં? ગિરનારના ઉપર પરિક્રમાના મેળામાં એક 14 થી 16 વર્ષની દીકરી જેને પેશાબ લાગી હતી, એ પેશાબ માટે જગ્યા નહોતી મળતી, આટલા બધા લોકો હતા, કોઈ બાથરૂમ ત્યાં નહોતું. એ છોકરીને જબરદસ્તીથી પેશાબ પોતાના લહેંગામાં કરવો પડ્યો. મારી દીકરીને લહેંગામાં પેશાબ કરવો પડ્યો લોકોના સામે. ત્યારે મારા ગિરનારના ડોળીવાળા, મારા ગિરનારના દુકાનવાળા એ બધા ભેગા થયા ને એને આરાશ કરીને એના કપડા બદલાવવા માટે આગે આવ્યા. મારી મગજ ના ફેરવતું. એક બાથરૂમ તું બાંધી નહીં શક્યો. આ જુનાગઢનું સત્યાનાશ થયું છે. એમાં સિંહ ફાળો કોનો છે? આ જુનાગઢને વિચારવું પડશે. પૂરી શાક વેચીને બંગલા ન બાંધી શકાય. હું આવીને વાતો કરે છે? તું વાત કરે છે શાંતિઓ તું શંકરાચાર્ય છે અમારો? અને આ કૌભાંડોની લિસ્ટ કાઢી તારું નામ પહેલા કૌભાંડમાં અત્યારે કહું છું. હજી તો દુનિયાભરનું છે. આ તું બોયલો એની નસ પકડાઈ ગઈ છે કે આ તું શા માટે બોયલો? આ જો ભવનાથ મંદિર ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું છે. આ ભાઈને હડપવું તું, ગિરીશને, ભવનાથ મંદિરને. એટલે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું જે ધાર્મિક ટ્રસ્ટ છે, આ ભાઈએ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ બનાવીને પોતે ટ્રસ્ટી થવા માટે અપીલ કરેલી. એના કાગળો શૈલજા દેવીજી એના અધ્યક્ષ. મને શૈલજા દેવીજી ના પ્રત્યે કઈ કેવું નથી, પણ તમે શાંત રહેજો તો સારું છે. કે નહીં તો પછી મને આ બધું બારે કાઢવું પડશે. એટલે શૈલજા દેવીજી જે છે પુનિતાચાર્ય આશ્રમના, એના માટે હું કંઈ જ નહીં કહું. પણ જો કંઈ મારા વિશે વાતો કરશો તો હું ઈ પણ કાગળો બધા બારે કરીશ કે આ મંદિર હડપવા માટે શું શું થયું હતું. તો આ તમને જે હું વાત કરવા માંગુ છું, આના અંદર તમે જોશો તો જુનાગઢના લોકોને ખબર પડશે કે આ જો આ જે ભાઈ શાંત કરાવવા માંગતો હતો, એ શાંત કરાવવા પાછળ મંદિર હડપવાની તૈયારી ચાલુ હતી. આ જો ગિરીશ કોટેચા ટ્રસ્ટી થવા માટે અરજી કરેલી, જે એક ધાર્મિક ટ્રસ્ટ છે, સાધુ સંતોના જેના આદિ અનાદિકાલથી ચાલી રહ્યું છે, આ હડપવાની તૈયારી કરેલી. આની તમને હું કોપી આપીશ. અને આ એક જ કાગળ આપ્યો છે. હું જુનાગઢમાં ઘૂસ્યો નથી, રાજકારણની વાત મેં કરી નથી, એટલે હું બીજી વાત નહીં કરું. ગિરનાર અને ધર્મ સિવાય બીજી વાત નહીં કરું. હું ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટીને, પીએમ સાહેબ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને, અમિત શાહજીને અને આપણા મુખ્યમંત્રી સાહેબને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષને વિનંતી કરીશ, બહારનું પાપ લાવીને આ પાર્ટીને બદનામ કરે છે. જુનાગઢના સત્યાનાશમાં સિંહ ફાળો કોનો છે આ જુનાગઢે નક્કી કરવું જોઈએ. અને આવા બહારના પાપ લાવીને આ પાર્ટીઓને રાજકારણ દૂષિત થાય, આને બારે કાઢી મુકાય. સાધુ સંતોને સલાહ આપે છે તું. ભાઈ સફાઈ અભિયાન ચાલુ છે, ધૂળ ઉડશે એટલે હવે પછી મને નથી કેવું કે કોના ઘરમાં કયા કર્મચારી કામ કરી રહ્યા છે.
એટલે શાંતિ રાખો. હવે જો કોઈ બાઈટ આવી સલાહ આપતી વખતે તો એટલું યાદ રાખજો, હું જુનાગઢમાં ઘૂસીશ પછી કોણ કોના કામમાં પાર્ટનર છે, કોણે આ તળાવ છે એના દૂધણું 18 વર્ષથી ચાલુ છે, શું છે, પૂરી શાક બાંધ્યા પછી બંગલા બંધાય નહીં ભાઈ, બધું બહાર આવશે પછી. એટલે કહું છું હજી પણ કે શાંત રહો, દોડાયા ન થાવ, આંગળી ના કરો. એટલે આ વાત મહત્વની બતાવવી જરૂરી હતી. વિકાસ હીરો ને ગિરિયો હીરો બતાવો. Audio Jungle.